آپ کتنی بھی سیکورٹی بڑھائیں، جو قاتل ہے he has an advantage. Remember always. اس کے پاس ایڈوانٹیج ہے، وہ کہاں پہ آپ کو ٹارگیٹ کرنا چاہتا ہے، کیا کرنا چاہتا ہے، وہ بہتر جانتا ہے بنسبت کی سیکورٹی کے. میں آپ کو کچھ باتیں پیچھے بتانا چاہتا ہوں. جواہر لال نہرو کا وقت تھا، روس کے زبردست دوست تھے، اور روس کی فوج جب ایران میں گئی تو پہلا شخص جس نے روس کے خلاف بات کی وہ جواہر لال نہرو تھا. اس نے کہا رشیا کو اپنی فوجیں واپس لے جانی چاہیے. دوسرا منموہن سنگھ، جب اٹامک ڈیل ہو رہی تھی تو منموہن سنگھ کو وہاں کے پریزیڈنٹ نے ٹیلی فون کیا کہ صاحب ہمیں آپ کا ووٹ چاہیے. ایک مسئلہ تھا جس پہ ان کی ووٹ کی ضرورت تھی، نہیں تو آپ کی جو نیوکلیر ڈیل ہے اس میں اڑچن پڑ جائے گی. منموہن سنگھ جی نے پتا کیا کہا دس از اے ساورن نیشن. واٹ از ان انٹرسٹ آف دا ساورن نیشن دیٹ ڈیسیژن وی ول ٹیک. دیٹ از واٹ انڈیا از. So what's your vote tradition? India remains sovereign nation and India should decide what is best for India. That is important. میرے پاس الفاظ نہیں ہیں. ایک جو میرے ساتھ جو لوکل پولیس ہے، ان کے بندے ہیں جو میرے ساتھ سیکورٹی میں ہیں، اس کے بعد جو NSG ہے جو اپنی جان کو سامنے رکھ کر مجھے بچانے کی کوشش کرتے ہیں. سر پارٹی کے نیتا جو ہیں، لیڈر ہیں، لگاتار ٹارگیٹ کر رہے ہیں. کل شام سے جو یہ گھٹنا ہوئی ہے لگاتار ٹارگیٹ کر رہے ہیں سینٹرل گورنمنٹ کو، JNK LG ایڈمنسٹریشن کو، کہہ رہے ہیں کہ جو ایک سازش کے تحت یہ سب کچھ ہوا ہے اور سازش کے تحت جانا چاہیے. دیکھیے سازش تو اب پتہ لگ جائے گی، مگر میں گزارش کروں گا دونوں سینٹر کو بھی اور اسٹیٹ کے LG کو بھی کہ یہ جو بار بار یہ کہتے ہیں کہ ماحول بالکل ٹھیک ہو گیا ہے، انہیں یہ دیکھنا چاہیے کیا سچ مچ ماحول ٹھیک ہو گیا ہے، کہ ماحول کیا اس لائق ہو گیا کہ ہم لوگ عزت سے چل سکیں. ٹھیک ہے ہماری رائے الگ ہوگی. اب ان لوگوں کے لیے جگہ بہت کم ہے جو دوستی کی بات کرتے ہیں، جو ایک دوسرے مذہب کی محبت کی بات کرتے ہیں، کیونکہ کوئی مذہب سکھاتا نہیں ہے نفرت، کوئی مذہب سکھاتا نہیں ہے کہ دوسرے کو نقصان پہنچاؤ، بلکہ ہر دھرم جو ہے وہ محبت سکھاتا ہے، پیار سکھاتا ہے، ایک دوسرے کی مدد سکھاتا ہے. میں ان کے ساتھ بیٹھ کے جب دلہن آئی اس کے بعد ہم نے ان سے اجازت لی اور ہم لوگ گھر کی طرف نکل لے. جو ہی میں اس منڈپ سے باہر نکلا تو میں چل رہا تھا، اتنے وقت میں مجھے کوئی پٹاخے کی آواز آئی تو میں سمجھا یہ کوئی پٹاخہ کسی نے شادیوں میں ڈالتے رہتے ہیں، تو میں سوچ سکتا میرے پاس پٹاخہ یہاں پڑا ہو، تو مجھے یہاں کچھ گرمی جیسی لگی اور مجھے کچھ پتہ نہیں تھا. اتنے وقت میں انہوں نے مجھے جلدی جلدی گاڑی میں بٹھا دیا. جو انہوں نے مجھے گاڑی میں بٹھایا تو مجھے کہنے لگے جناب یہ تو ایک پستول تھا صاحب کے اس انسان کے پاس اور اس نے 2 گولیاں چلائیں تھیں. دوسری گولی میں ہمارے ان کے جو ہماری سیکورٹی والے بھی ہیں اور دوسرے انہوں نے کیا کیا کہ ایک نے اس کو ہاتھ بازو سے پیچھے کھینچنے کی کوشش کی تو اس سے وہ ڈی اسٹیبلائز ہو گیا، تو اس کا جو پستول ہے اوپر وہ چلا گیا. اتنے وقت میں سیکورٹی والے نے اس پستول کو اس کے ہاتھ کو پکڑ لیا تو گولی چل دی تھی. میں نے اتنا ہی سنا. اس کے بعد یہاں آ کے گھر میں مجھے کوئی بھی نہ میں اس آدمی کو جانتا ہوں نہ مجھے اس آدمی کا کچھ پتا ہے، بالکل نہیں. اس نے اسٹیٹمنٹ دیا کہ یہ 20 سال سے تیاری کر رہا تھا، اس کی پرسنل کوئی رنجش تھی، مقصد تھا. کیا لگتا ہے آپ کو کیا ہو سکتا ہے؟ دیکھیے مجھے کیا پتا اس کا مقصد کیا تھا، کیا رنجش کیا تھی، کیونکہ میں نے کسی کے ساتھ برائی نہیں کی ہے. جو بھی میرے پاس آیا جب میں وزیر اعلیٰ بھی تھا، وہ کیوں نہ اپوزیشن کا ہو، میں نے اس سے اپنے لوگوں سے زیادہ محبت کی، زیادہ ان کی مشکلیں دور کرنے کی کوشش کی. میں نے کبھی بھی دل میں کسی کے لیے نفرت پیدا نہیں کی ہے. پتہ نہیں اس کو کیا تھا، رنجش کیا تھی. لگتا ہے یہ سیکورٹی لیب سے کسی جگہ دیکھیے
ये कहूँ कि सिक्योरिटी लैप्स है, ये तो एक बहुत बड़ा सेंटेंस है। सवाल इस बात का है, इस मैरिज में सारे बड़े बड़े लोग थे, इसलिए पुलिस को इसका एहतियात ख्याल तो रखना चाहिए था, जिसका नहीं था। वहाँ कोई पुलिस का इंतज़ाम था ही नहीं। ये तो अल्लाह का शुक्र है कि मेरी सिक्योरिटी मेरे साथ थी, और फिर हमारे जो मिनिस्टर साहब थे उनकी थोड़ी सी सिक्योरिटी थी साथ, और हमारी MLAs वगैरह थे जिन्होंने उस वक्त हिम्मत की, और मैं बच गया। आपको होम मिनिस्टर साहब का भी फोन आया था, गृह मंत्री जी का? हाँ, मुझे आया था। क्या बोला रात को उन्होंने मुझसे कहा कि आप कैसे हैं? मैंने कहा जी शुक्र है उसका, ऊपर वाले का, कि मैं बच गया हूँ। और उन्होंने कहा नहीं, हमने उसको पकड़ लिया है, उसकी तहकीकात करेंगे और आपको बता देंगे कि ये क्या हुआ है। सर इंक्वायरी होनी चाहिए प्रॉपर इसमें, और क्या? देखिए, अब तो इनके तक है, इंक्वायरी तो इनको करनी चाहिए कि हुआ क्यों, क्या वजह थी, क्योंकि ये चीज़ें होती रहती हैं। आजकल जिस माहौल में हम रह रहे हैं, जहाँ पे कि एक नफरत का एक जाल फैला हुआ है, वहाँ पे एहतियात करना चाहिए। सर आपको लगता है लॉ लाइसेंस वेपन का जो मिसयूज हो रहा है, आपको लगता है? फेलियर है? क्वेश्चन हियर इज, सबसे बड़ी ट्रेजेडी ये है, जो वतन में नफरत है ना, उसने जड़ें पकड़ ली है। अब उन लोगों के लिए जगह बहुत कम है जो दोस्ती की बात करते हैं, जो एक दूसरे मजहब की मोहब्बत की बात करते हैं, क्योंकि कोई मजहब सिखाता नहीं है नफरत, कोई मजहब सिखाता नहीं है कि दूसरे को नुकसान पहुंचाओ, बल्कि हर धर्म जो है वो मोहब्बत सिखाता है, प्यार सिखाता है, एक दूसरे की मदद सिखाता है। और मैं समझता हूँ कि हमने उस धर्म को छोड़ दिया है। क्या कहना चाहेंगे अपने उन PSOs के लिए जिन्होंने डिफ्लेक्ट करा था? बड़ा इल्जाम लगाया, उन्होंने कहा कि पुलिस ने कोऑपरेट नहीं किया, वहाँ पे पुलिस की गाड़ी नहीं अवेलेबल नहीं थी, जो कोऑपरेशन होनी चाहिए। देखिए ना, वहाँ पुलिस थी ही नहीं, सबसे बड़ी बात तो ये पुलिस थी ही नहीं, जबकि पुलिस को होना चाहिए था। मेरे लिए नहीं, वहाँ तो सबसे बहुत बड़े बड़े लोग आए थे उस शादी में, तो शादी के लिए तो ज़रूरी था कि वहाँ प्रोटेक्शन होना चाहिए, क्योंकि जिस माहौल में हम रह रहे हैं उसमें ऐसे लोग हैं, और इसका एहतियात तो करना चाहिए, ज़रूरी है। आप अपने PSOs का रोल कैसे देख रहे हैं, जिस तरीके से उन्होंने डिफ्लेक्ट किया है? देखिए, मेरे पास अल्फाज नहीं है। एक जो मेरे साथ जो लोकल पुलिस है, उनके बंदे हैं जो मेरे साथ सिक्योरिटी में है, उसके बाद जो NSG है जो अपनी जान को सामने रखकर मुझे बचाने की कोशिश करते हैं। सर आरएसएस के नेता जो हैं, लीडर हैं, लगातार टारगेट कर रहे हैं। कल शाम से जो ये घटना हुई है, लगातार टारगेट कर रहे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट को, JNK LG एडमिनिस्ट्रेशन को कह रहे हैं कि जो एक साजिश के तहत ये सब कुछ हुआ है और साजिश के तहत जाना चाहिए। देखिए, साजिश तो अब पता लग जाएगी, मगर मैं गुजारिश करूंगा दोनों सेंटर को भी और स्टेट के LG को भी कि ये जो बार बार ये कहते हैं कि माहौल बिल्कुल ठीक हो गया है, उन्हें ये देखना चाहिए क्या सचमुच माहौल ठीक हो गया है, कि माहौल क्या उस लायक हो गया कि हम लोग इज्जत से चल सकें। ठीक है, हमारी राय अलग होगी, मगर भारत जो है वो इंडिपेंडेंट नेशन है, सेकुलर नेशन है, इसमें हर एक की आवाज़ हो सकती है। मुझे उनकी आवाज़ ठीक नहीं लगे, उनको मेरी आवाज़ ठीक नहीं लगी, मगर हम लोगों ने चलना है। यही तो इस मुल्क की सबसे बड़ी चीज़ यही थी कि आप बात कर सकते थे। आज देखिए, मीडिया क्या लिख सकता है नहीं। डॉक्टर साहब एक सवाल रहेगा। डॉक्टर साहब, कांग्रेस के प्रेसिडेंट खड़गे साहब ने कहा कि स्टेट ना होने की वजह से भी इस तरीके के हादसा पेश आते हैं। देखिए, सबसे बड़ी चीज ये है, एक इलेक्टेड गवर्नमेंट है और उस इलेक्टेड गवर्नमेंट के पास पावर नहीं है। ये कैसे हो सकता है? अगर इलेक्शन हुए, इलेक्शन में ये वादा किया गया कि साहब स्टेटहुड हम रिस्टोर करेंगे, आपकी मुश्किलों को दूर करेंगे। अब बताइए, इतने साल हो गए, कहाँ है वो स्टेटहुड जिसका वादा न सिर्फ इन्होंने पार्लियामेंट में किया बल्कि इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में किया।
तब तो ये आप हम पे उंगली उठा सकते थे। सर स्ट्रेट ना होने की वजह से भी क्या क्राइम बढ़ रहा है जम्मू कश्मीर के अंदर? देखिए क्राइम जो है वो तो आप जानते हैं कितना है, सारे वतन में कितना है, और है गरीबी बढ़ रही है, और जो अब हालत बन गई है दुनिया में ईरान की जंग से, उससे हम लोगों को और भी असर पड़ेगा। और सबसे बड़ी मुसीबत ये है कि गरीबी नहीं, मिडिल क्लास जो है, आप लोग जो हैं क्या करेंगे? आप हर एक चीज का दाम चढ़ रहा है, आपके तेल का दाम चढ़ जाएगा, आपके गैस नहीं मिलेगी, क्या करेंगे? अब वो जमाने गए कि आप लकड़ी जला के चूल्हा जला सकते थे, वो जमाना गया। इसलिए मैं मरकज से जरूर कहूँगा कि उनकी दोस्ती है ट्रंप से भी और नेतन्याहू से भी, कि खुदा के वास्ते उनसे कहिए जंग बंद करें, फारूक साहब जंग बंद करना जरूरी है। जिन्होंने या कोई आपको कभी नहीं मिला जनाब, मैं जानता भी नहीं हूँ। मैंने पहली दफा उसकी तस्वीर तो कल उस मोबाइल पे इन्हें मुझे दिखाई, मुझसे क्या रंजिश हो सकती? डॉक्टर साहब कोई क्या ये इकलौता शख्स है कि आपको लगता है साजिश के पीछे और भी कुछ हो सकता है, और ये पॉलिटिकल साजिश भी हो सकती है? देखिए मैं कुछ नहीं कह सकता, मैं किसी के ऊपर उंगली नहीं उठा सकता क्योंकि मुझे कुछ पता ही नहीं है। यार मुझे बिल्कुल ये पता नहीं है कि इसको क्या रंजिश मुझसे है। मेरे दरवाजे तो हर वक्त खुले हैं, कभी आपने मैं दरवाजा बंद देखा? जो भी आता है मैं उसका सुनता हूँ, जितना हो सकता है मुझसे मैं उसका काम करता हूँ। डॉक्टर साहब आपकी सिक्योरिटी जो कैवलकेड है उसको भी डाउनग्रेड किया गया था, तो क्या उसका भी नतीजा हो सकता है? देखिए आप कितनी भी सिक्योरिटी बढ़ाएं, जो कातिल है he has an advantage, remember always। उसके पास एडवांटेज है, वो कहाँ पे आपको टारगेट करना चाहता है, क्या करना चाहता है, वो बेहतर जानता है बनिस्बत की सिक्योरिटी के। मैं ये कहूँ कि साहब और सिक्योरिटी बढ़ाइए, उससे मुझे कोई फायदा सवाल नहीं। सबसे बड़ी मुसीबत ये है कि we live in an era where terrorism is up in the sky, और इसका हम कंट्रोल कर ही नहीं रह सकते। Well, last question, sir. Home Minister has assured you of action and results very soon. And what actually you conveyed him while you were talking to him? I said to him, thank you for calling, and I hope you will be able to get down to the ground of this. फारूक साहब And I wished him well. शबीर शाह की बेल हो गई है, सुप्रीम कोर्ट ने आज शबीर शाह को बेल दी है, किस तरह से लेकर क्या रिएक्शन? बहुत मुबारक हो। मैं समझता हूँ सबको छोड़ना चाहिए, आए और इस वतन को बेहतर बनाएं कि लोग यहाँ जिंदा रह सके, इंसानियत से जिंदा रह सके, नफरतें छोड़ दें। हमारे हिंदू भाई आज भी यहाँ बैठे हुए हैं, कब तक बैठेंगे? 34 साल हो गए, जबकि उस वक्त के गवर्नर ने उनसे कहा था कि हम 2 महीने में आपको ले जाएंगे। खैर वक्त तो आ गया है कि इंसानियत से हम रहें, कब तक नफरत में रहेंगे? मैं हैरान हूं। अरे यार मुझे एक किताब दिखाओ आप, वो हिंदुओं की हो, मुसलमानों की हो, ईसाइयों की हो, बौद्धों की हो, जिसमें नफरत की बात कही हो। उनसे भी यही कहते हैं कि साहब हमने सारों ने दोस्ती में रहना है। अगर उसने हमें अलग अलग बनाया होता तो फिर हमारे लिए दवाइयाँ भी अलग अलग होती। अगर मुझे सर में दर्द है, सरदार साहब को सर में दर्द है, वही दवाई तो खाएगा ये भी और मैं भी। तो इंसान तो हम हैं, तो कब हम इंसान की तरह रहने की कोशिश करेंगे, ये मसला है। आपका शक किस ओर जाता है डॉक्टर साहब? क्या कोई टेरर एंगल भी हो सकता है इस एक्सपीरियंस में? क्या हो सकता है? टेरर एंगल। देखिए टेरर तो हमारे वतन में है, न सिर्फ हमारे वतन में, दुनिया में टेरर है। आज कहीं भी कुछ हो सकता है, किसी मुल्क में भी, जिसके लिए सारी दुनिया कोशिश कर रही है इसको खत्म करने की, और हो नहीं रहा। एक आखिरी सवाल सर, आपको लगता है कि जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और इजराइल है अपने पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव जिस तरीके से वो कह रहे थे कि डिसमेंटल करेंगे रजीम को, उसमें सक्सेसफुल हुए हैं या मिलिट्री ऑब्जेक्टिव में सक्सेसफुल हुए हैं? देखिए मैं आपको कुछ बातें पीछे बताना चाहता हूँ। जवाहरलाल नेहरू का वक्त था, रूस के जबरदस्त दोस्त थे,
और रूस की फौज जब ईरान में गई तो पहला शख्स जिसने रूस के खिलाफ बात की वो जवाहरलाल नेहरू था। उसने कहा रशिया को अपनी फौजें वापस ले जानी चाहिए। दूसरा मनमोहन सिंह, जब एटॉमिक डील हो रही थी तो मनमोहन सिंह को वहाँ के प्रेसिडेंट ने टेलीफोन किया कि साहब हमें आपका वोट चाहिए। एक मसला था जिस पे उनकी वोट की ज़रूरत थी, नहीं तो आपकी जो न्यूक्लियर डील है उसमें अड़चन पड़ जाएगी। मनमोहन सिंह जी ने पता क्या कहा दिस इज अ सॉवरेन नेशन, व्हाट इज इन इंटरेस्ट ऑफ द सॉवरेन नेशन दैट डिसीजन वी विल टेक। दैट इज व्हाट इंडिया इज। So what's your vote, Prime Minister? India Narendra Modi? remains sovereign nation and India should decide what is best for India. That is important. Thank you.